Good morning, students. Welcome back to biology classroom once again. I hope all of you done well in the exam. So after exam, I will start chapter 7, allergy. So look at your book. Many people are allergic to many things around them, such as weather, flowers, smell, and so on. This happens because these things are foreign to the body. They are outsider. When they enter inside our body, we feel different types of internal problem. The body develops immune response to these foreign substances that are not typically harmful to the body. Our body's job is to keep us healthy by the fighting harmful substances. So it does this by attacking something that could put our body at risk. Therefore, depending upon the allergens, our body's response could vary from inflammation, sneezing, coughing, and so on. Our body's immune system typically adjusts to the environment. इसका मतलब क्या है? Our body's immune system typically adjusts to the environment. मतलब अगर कोई फॉरेन माइक्रोब्स या एनी आउटसाइडर जब हम लोग का शरीर में घुस जाता है, उस दौरान हम लोग का जो इम्यून पावर है वो उसके साथ फाइट करके हम लोग का शरीर को एडजस्ट करते हैं उसके साथ. फॉर एग्जाम्पल, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर शुड बी encountered by our body as harmless. So some person who are normally allergen, मतलब those who have some allergens like pollen grains या डस्ट पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में आते ही उन लोगों को छींकना शुरू हो जाएगा, खांसना शुरू हो जाता है. So these are not so harmful. However, in people with pollen allergies, the immune system perceives it as a foreign that threatens as the body and thus attacks it. So जब हम लोग का इम्यून सिस्टम अगर वीक हो तो नॉर्मली ये हम लोग का शरीर के ऊपर हार्मफुल हो जाता है, मतलब हावी हो जाता है. तो नॉर्मली हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है ये शरीर में ये एंटीजन पैदा करके इसको अटैक करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी पर क्रिएट करने वाला जो एजेंट्स है उसको किल करके हम लोग का शरीर को हेल्दी रखता है. These foreign substances are called antigens. These antigens that produce allergic reaction in the bodies with whom they interact are called allergens. मतलब जो फॉरेन सब्सटेंसेस हम लोग का शरीर में घुस जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीजेंस. तो नॉर्मली antigens that produce allergic reaction in the bodies with whom they interact. तो जब एंटीजन ये एलर्जी क्रिएट करने वाला कोई एजेंट के साथ मिल जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलर्जेंस. Different allergens can enter the body through different routes such as mouth, nose, and skin. For example, pollen may enter through nose and mouth, and sunlight affects the skin. Types of allergens. Allergens can be two types: food allergens and non-food allergens. Food allergy is an immune response that occurs soon after we eat a certain type of food. मतलब food allergy is an immune response that occurs soon after we eat a certain type of food. मतलब ऐसा कोई खाना अगर हम लोग खा लेंगे जिस दौरान ये जो एलर्जेंस खाने के अंदर है वो हम लोग का शरीर को कोई मतलब एक्स्ट्रा इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन में डाल दे, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? फूड एलर्जी. Food allergens include food products such as eggs, overripe fruits, dairy products, seafood, etc. The possible treatment for food allergens has not been found yet. तो नॉर्मली ये फूड एलर्जेंस के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है. इट कैन बी अवॉइडेड बाई अवॉइडिंग द पॉजिटिव फूड एलर्जेंस. ये तभी मतलब रोध कर सकते हैं हम लोग अगर हम जिस खाने से हम लोग को एलर्जी है उस खाने को अगर हम लोग नहीं खाए तो नॉर्मली हम लोग ये एलर्जी को फूड एलर्जी को प्रिवेंट कर सकते हैं.
Non-food allergens include pollen, dust, insect bites such as the bites of ants and bees, certain injections such as the penicillin, etc. So different types of pollen grains, dust, insect biting. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन में हम लोग को जो एलर्जी हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फूड एलर्जेंस. Entry route of allergens. Allergens can enter the human body through three main routes. First one is mouth, nose and skin. Mouth. Allergens can enter the body by ingestion through the mouth. तो नॉर्मली एलर्जेंस हम लोग का शरीर में घुस जाता है डायरेक्टली कोई फूड के द्वारा, जो चीज़ हम लोग मुंह से खाते हैं. द एलर्जी कॉज्ड इन द माउथ इज कॉल्ड ओरल एलर्जी. तो नॉर्मली ये एलर्जी जब मतलब मुंह से होता है उस हम एलर्जी को क्या बोलेंगे? ओरल एलर्जी. द मेन सिम्टम्स ऑफ ओरल एलर्जी इंक्लूड इचनेस इन द माउथ, scratchy throat, swelling in the lips, mouth, tongue and throat, rashes around mouth. मतलब ये एलर्जी बेसिकली अराउंड अवर फेशियल पार्ट में दिखाई देता है. तो क्या होगा? इसका सिम्टम्स क्या होता है? माउथ स्क्रैची थ्रोट, मतलब हम लोग का गला खुजलाने चालू हो जाएगा. स्वेलिंग इन द लिप्स, हम लोग का होठ फूल जाएगा. माउथ, टंग एंड थ्रोट, मुंह अपना हम लोगों का जो टंग, थ्रोट सब कुछ ऐसे स्वेलिंग महसूस होगा, मतलब वो फुल रहा है ऐसा महसूस होगा. रैसेस अराउंड माउथ, मुंह का मतलब हम लोग का गले का और फेशियल पार्ट में नॉर्मली रैसेस दिखाई देगा. नेक्स्ट, नोज. द एलर्जेंस कैन enter through the nose during breathing. जब हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं या सांस छोड़ देते हैं उस टाइम जो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन एलर्जेंस को या नॉन फूड एलर्जेंस को हम लोग शरीर में घुसा देते हैं उस दौरान ये एलर्जी क्रिएट हो सकता है. तो दिस टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेजल एलर्जी, बिकॉज इट इज ऑकर्ड थ्रू नोज. द main allergens include pollen grains, dust, cat saliva, molds, animal fur, cigarette smoke, etc. The main symptoms of the nasal allergy include sneezing, coughing, nose congestion, etc. So this type of allergy created sneezing, जिसके द्वारा हम लोगों का क्या महसूस होगा? हम लोग का छींकना, खांसना और नोज कॉन्जेशन, मतलब अपना नाक बंद हो जाना, ऐसा महसूस होगा. नेक्स्ट स्किन. When allergens come in contact against the skin, it can cause skin allergy. तो नॉर्मली जब हम एलर्जी स्किन के द्वारा फैलता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्किन एलर्जीज. द एलर्जीज कॉज्ड इन द स्किन आर कॉल्ड स्किन एलर्जीज. सम एलर्जेंस दैट कॉज स्किन एलर्जीज इंक्लूड सोप्स, डिटर्जेंट्स, सर्टेन कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स, एटसेट्रा. स्किन एलर्जीज कैन कॉज रेडनेस, इचीनेस, ब्लिस्टर एटसेट्रा इन द स्किन. सो नॉर्मली स्किन एलर्जी से होने पे हम लोग का क्या होता है? रेडनेस, इचनेस, ब्लिस्टर इन द स्किन. अपना स्किन लाल हो जाता है, खुजलाना चालू हो जाता है और उसके ऊपर ब्लिस्टर और रैसेस दिखाई देगा. नॉर्मली रेस्पॉन्सिबल क्या है? सोप और डिटर्जेंट्स. सम कॉस्मेटिक्स भी हो सकता है. So student, I hope all of you understood what I've discussed in this video. So for today, up to this portion.